Okay, so identity, yes, Ayushi. Using a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइए इसको खोलते हैं। अब यहाँ पर a की जगह क्या है? यस वैभवी 5x और b की जगह क्या है? पवन यू आर ऑल्सो राइट। b की जगह क्या है? यस पवन वैभवी ईशान 11। तो आइए बस इसको ओपन करके देखते हैं। सो हम पहले लिखेंगे a स्क्वायर की जगह लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 2ab की जगह क्या लिखेंगे? 2 into a की जगह लिखेंगे 5x और b की जगह लिखेंगे 11 प्लस b स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 11 का स्क्वायर। जस्ट अ सेकंड। सॉरी 11 का स्क्वायर 22 नहीं होता है। चलिए पहले देखेंगे 5x स्क्वायर। पहले नंबर को यस वैभवी 5 को पहले ओपन करिए। 5 into 5 is 25 और x into x x square. Yes Papa, that will be very good. 25x square. Easy. अब इस पर आइए। 2 into 5 is 10 and 10 into 11 is 2 into 5 is 10 and 10 into 11 is Pavan, Ishant, Vaibhavi. Very good. 110 x क्योंकि एक ही अल्फाबेट है इसलिए x प्लस 11 स्क्वायर। 11 इंटू 2 नहीं है, याद रखेंगे कई बच्चे स्क्वायर करने में इंटू 2 कर देते हैं। स्क्वायर का मतलब है वही नंबर मल्टीप्लाइड अगेन विद द सेम नंबर। सो 11 इंटू 11 इज 121। कुछ बेसिक नंबर्स के आप स्क्वायर याद कर लेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। सो 1 to 10 के स्क्वायर्स तो आपको याद होने ही चाहिए। सो दिस इज द आंसर। करें 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 into 1 yes Pavan Ishant only 3 students are answering. Why? Yes, thank you Bhavanshi Lux, very good. 2 का स्क्वायर 4 yes 2 into 2. 3 का स्क्वायर नो 6 नहीं है 9। यही तो मैं कह रही हूँ बच्चे क्या सोचते हैं 3 into 2 है जबकि स्क्वायर का मतलब होता है 3 into 3। So 3 का स्क्वायर is not 6, it is 9. 4 का स्क्वायर yes 16 not 8 and 5 का स्क्वायर not 10 25. 6 का स्क्वायर yes 36 not 32. 7 का स्क्वायर मतलब 7 sevens are yes Devanshu 49. 8 into 8 64. 9 into 9 81 and 10 into 10 100. yes very good. इसी तरह से 11 into 11 क्या हो जाएगा 121। अब कोई भी बच्चा 1 to 10 के स्क्वायर में कभी भी गलती नहीं करेगा। स्क्वायर मतलब उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना। स्क्वायर मतलब ये नहीं होता है कि 2 into that particular number. So इसमें आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। प्रॉमिस?
Yes or no? Nobody is saying yes. स्क्वायर में बच्चे कभी कोई गलती नहीं करेंगे. स्क्वायर मीन्स द नंबर इटसेल्फ इज मल्टीप्लाइड विद द सेम नंबर, not in. Okay, I hope it is clear. I think most of us are here. Let us quickly take attendance. The students coming late will not be marked present. 8th A. Aditya Raj present. Aditya Tak absent. Ankita Meena present. Ansh Arora absent. Arpit Meena absent. Ayushi present. Bhavyanshi present. Vineet present. Charu present. Dimple Sharma. Mohan. Hari Mohan present. Harshita present. Hemant present. Himanshu absent. Ishika present. Jay present. Jayesh Raj absent. Jyoti absent. Kangana present. Kanishka absent. Kushal present. Khyati present. Laksh present. Mahika absent. Manas absent. Mohit absent. Nihar absent. Nitesh Parihar absent. Pawan Singh Rathore present. Piyush absent. Pradyum absent. Rahul present. Ronit present. Sakshi absent. Sanskriti present. Siddhi absent. Tarun Ravi present. Vaishnavi absent. Samriddhi present. Devyanshu present. 8B Abhishek absent. Aditya present. Ansh present. Dimple Lilyani present. Devsoni present. Divyansh Somawat present. Divyansh Verma absent. Diya Mehra absent. Harjeet absent. Harshit absent. Himanshu present. Ira absent. Ishant present. Janvi absent. Jaka absent. Kavish present. Keshav absent. Krishna absent. Mahi present. Manali present. Mohit absent.
Muskan absent, Nitesh present, Pallavi absent, Priyanshi present, Priyantu absent, Priya absent, Rohan absent, Raunak present, Sneha absent, Suni absent, Sudhanshu absent, Suhani absent, Sumit present, Yashwardhan absent, Yogesh absent, and Gautam is absent. Have I missed anybody? Yogesh just entered, so I'm marking you as present. Okay. Nitya, yes, mark you present. Lower down your hand. If anybody has a question, they will write to the chat box. And let us start with the fourth question. Fourth question is a fraction, don't they? And both the fractions have similar alphabet. So you have to be careful while multiplying them. So it is a by 2. A by 2 plus 2 by a whole square. So we will be using the same identity. Which identity? A plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Hada, very good. Here, what is a? In this equation, a से मतलब नहीं कि a अल्फाबेट क्या है. a मतलब है इस ब्रैकेट में इसको अपन ले कर रहे हैं. फर्स्ट टर्म क्या है? या वैभवी पर एक जगह यहाँ पर आएगा a/2 और b क्या है? b मतलब इक्वल की सेकंड टर्म. वैभवी राइट, उसकी जगह आएगा 2/a. A is equals to a by 2 and b equals to 2 by a. कैलकुलेट में ध्यान रखेंगे. आइए इसको खोल देखते हैं. Equals to a की जगह लिखेंगे हम a by 2 स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट टर्म है हमारी a by 2. सेकंड लिखेंगे 2 into सेकंड क्या लेंगे 2 into a by 2 into सेकंड टर्म क्या है 2 by a. सेकंड टर्म है 2 by a प्लस b स्क्वायर है. b स्क्वायर क्या है 2 by a whole square. Why do you have to join our class so late? Third, I'm marking you present. Ria. And Mohit. And Taru. Divyansh got swab must be present. If there is a question, yes, I'm present, but Mohit had to come into time. Whatever your question is, please write into the chat box. अब क्या करना है a by 2 into a by 2 मतलब a by 2 into a by 2 यही तो स्क्वायर का मतलब. मीटर से मल्टीप्लाई कीजिए a स्क्वायर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कीजिए 4. इसे क्या लिखेंगे a स्क्वायर by 4.
Yes, that's the internet problem. अब यहाँ देखिए सेकंड ब्रैकेट में इससे यू कैंसिल हो जाएगा और इस ए से ये कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं? बचा या ओनली एक डिजिट, क्या बचा 2, हम यहाँ लेंगे +2, फिर से देखिए इस 2 से ये कैंसिल है, मतलब यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इससे कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 बचा, तो न्यूमरेटर में क्या बचा 1 into 2 यानी 2, और डिनोमिनेटर क्या था 1 into 1 की 1, और डिनोमिनेटर को हम लिखते हैं तो सिर्फ नंबर 2 बना। अब यहाँ देखिए 2 into 2 8 हो जाएगा, 2 into 2 4 और 8 into 8 a स्क्वायर, यही इसका अंदर है। a स्क्वायर 4 plus 2 plus 4a स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? यहाँ इस कैलकुलेशन मिडिल ब्रैकेट में ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप पूरा ये लिखते हैं 4a by 2a तब भी गलत नहीं है, लेकिन सही आंसर क्या है 2। फिर आपको इसमें समझना चाहिए एक कैंसिल और दूसरे यहाँ 2 है, ये एक सही तरीका है +2। Now fifth question. What is the fifth question? 3x by 4 plus 2y by 9. Whole square. 3x by 4 plus 2y by 9 square. सेम आइडिया है a plus b whole square की, a square plus 2ab plus b square। अब जो a की जगह मतलब फर्स्ट टर्म जगह अपन लिखेंगे की जगह लिखेंगे इस ब्रैकेट से plus Pawan you write, anybody else? Yes, you are all right. Pawan, Ishan, Bhavi, Amriti, Ayush, yes, everybody is right। 3x by 4 और b की जगह लिए हम plus 2y by 9, 2y by 9। इसका ध्यान रखिए कि फर्स्ट टर्म होती है a की जगह और सेकंड टर्म होती है 1y की जगह। आइस को ओपन किए, थ्री एक्स बाय 4 होल स्क्वायर प्लस 2 into 3x by 4 into 2y by 9 plus 2y by 9 whole square। 3 square plus 3x upon 4 का whole square 2 3x upon 4 into 2y upon 9 into 2y upon 9 square। आइए कह सकते हैं इसको 3 into 3 becomes 9, x into x becomes x square, and 4 into 4 becomes 16. 9x square upon 16. No, 16 पे सर नहीं आयुषी, x पे स्क्वायर आएगा। 9x square 9 से 3x square। अब देखिए
इस 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ आया 1, यहाँ आ गया 2। अब ये 2 से भी 2 कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ आया 1 और यहाँ आया 3। ये आपकी डेब्यू है। 2 into 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 का 9, तो ये डिनोमिनेटर से बेस नंबर 3। यहाँ पर क्या न्यूमरेटर में क्या था 1 1 1, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर क्या बचा 1 और 3, यहाँ गया 3। अब ऐसा देखिए x into y, यहाँ आएगा x y, ठीक है, प्लस 2 into 2 is 4, y into y is y square, और denominator क्या है 9 into 9 is 81. This is the answer. 9 is 9 upon 16 x square, 1 by 3 x square by 4 by 81 y square. This is answer for fifth question. इस केस में जो ब्रैकेट है फ्रैक्शन केस में, ओनली केस फ्रैक्शन मिडिल ब्रैकेट बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसे कैंसिल आउट होता है। Please note down this and it is clear. Let's go in 6. Sixth question is 9x minus 10. 9x minus 10 whole square. अब यहाँ क्या है सिंबल बदल गया है, मतलब यहाँ पे माइनस टर्म कौन सा रेंज यूज करेंगे, प्लस का a माइनस b using a minus b square minus 2ab plus square। अब आखिरी बच गई है क्या, ये a माइनस b होल स्क्वायर। अब ये a से लेके आएगा, इन दोनों में से फर्स्ट टर्म सी है b 9x, अब b से गए which is second term 10 plus माइनस चाहिए लेंगे कि मतलब यहाँ पर आ रहा है, आइए ओपन करें, x square minus 2 into 9x into 10 plus 10 square। Easy है, 9x क्या हो 9 9 81 x square minus, यहाँ देखिए 2 into 9 is 18. It is wrong. It's not 18, it is 18. 18 into 10 is 180. और जो बैठता है ये अल्फाबेट है plus 10 to 10, 10 into 10, 10 का स्क्वायर के ऊपर लिया था, it is 100. This is the answer. 81x square minus 80x plus 100. Now we'll take another question. Hope it is easy. Sixth, seventh we will take.
Seventh is x minus y. X square minus y. X square y minus y z स्क्वायर, अब इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमेशा क्या होता है, एक नंबर और एक अल्फाबेट होता है। अब यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, दो अल्फाबेट कर दिए। ये ऑलरेडी अंदर स्क्वायर फॉर्म में है, उसका भी स्क्वायर करना है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इट इज वेरी सिंपल। सिंपली आप आइडेंटिटी की तरह रिप्लेस करेंगे। ए की जगह हम यूज करेंगे फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, नहीं एक्स स्क्वायर वाई, निशांत ये टाइपिंग मिस्टेक्स। और बी की जगह यहाँ यूज करेंगे हम वाई जेड स्क्वायर, जो सेकेंड सेट टर्म है। इजी है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बस इसको खोलेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई जेड स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और लास्ट में है प्लस वाई जेड स्क्वायर का स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर का स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन में नंबर्स नहीं है, सिर्फ अल्फाबेट है, तो हमको ध्यान रखना है, एक एक अल्फाबेट का हमको ध्यान रखना है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब x रेज टू द पावर 4, यस, और y का पावर क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y रेज टू द पावर 2। ध्यान रखेंगे, माइनस अल्फाबेट, पहले नंबर लिखेंगे, तो नंबर एक ही है इसमें 2, तो ये नंबर आ गया पहले 2। अब देखिए x को, देखिए x सिर्फ यहाँ स्क्वायर है और दूसरी टर्म में x नहीं है, तो यहाँ पर आ गया एज सच x स्क्वायर। अब y देखिए, y यहाँ पे पावर है 1 और यहाँ पे भी y है विद पावर 1, तो उसकी जगह आ गया y स्क्वायर। z यहाँ है ही नहीं, सिर्फ इसमें z है और स्क्वायर फॉर्म में है, तो हम यहाँ लिखेंगे z भी स्क्वायर में, ठीक है, प्लस y इंटू वाई बिकम्स y स्क्वायर। अब z स्क्वायर का स्क्वायर करना है, मतलब z raised to the power 4. Yes, everybody was doing right with me. This is the answer. X raised to the power 4 y square minus 2x square y square z square plus y square z raised to the power 4. आपको पता है कि अगर कोई नंबर है और उसके ऊपर भी एक पावर है तो क्या होता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। याद है, एक्सपोनेंट्स पढ़े हुए हैं अपन ने, यस आदित्य यू आर राइट। चलिए 8 करते हैं। एथ क्वेश्चन फ्रैक्शन में है। भवैशी टाइप योर क्वेरी। Lower down your hand and type your query in the chat box. X by y minus y by x whole square. If you are not listening to what your teacher is saying, then I have to remove you from my class. Ask your query in the chat box quickly.
अब आइडेंटिटी इसमें यही लगेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ a की जगह क्या यूज करेंगे हम, जो फर्स्ट टर्म है x बाय y, और b की जगह क्या यूज करेंगे हम, y बाय x। अब फ्रैक्शन में ध्यान रखेंगे, जब मिडिल टर्म सॉल्व करेंगे 2ab तब आपस में कैंसिल होने का चांस रहता है, तो वो देखेंगे। आइए ओपन करिए। a स्क्वायर की जगह आ जाएगा x बाय y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x बाय y इंटू y बाय x प्लस y बाय x होल स्क्वायर। इसको करते हैं सॉल्व, x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। ठीक है, इस सच में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आइए सेकंड ब्रैकेट में, अब इसमें नंबर कितना है, सिर्फ एक ही नंबर है तो -2। अब अल्फाबेट देखिए, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा और ये y इस y से कैंसिल हो जाएगा, तो कोई भी अल्फाबेट इसमें नहीं बचा, ओनली -2। अब यहाँ देखिए y अपॉन x का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। This is the answer. X square by y square minus 2 plus y square upon x square. Easy? भव्यांशी, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में क्यों नहीं लिख पा रहे हैं आप? Whatever your query is, write it into chat box. फ्रैक्शन के केस में कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट टर्म जो भी है प्लस माइनस से पहले जो भी लिखा हुआ है वो फर्स्ट टर्म है, और प्लस माइनस के बाद में जो लिखा है वो सेकंड टर्म है। ए की जगह फर्स्ट टर्म लिखिए, बी की जगह सेकंड टर्म लिखिए। Question is 3m minus 4 by 5n whole square. सेम आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर की, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह हम क्या लेंगे, फर्स्ट टर्म 3m, और b की जगह क्या लेंगे, सेकंड टर्म 4 by 5n। ये ध्यान रखेंगे, एक फ्रैक्शन में है एक सिंपल है, नो प्रॉब्लम। आइए करके देखते हैं। ए स्क्वायर की जगह लिखेंगे 3m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3m इंटू 4 by 5n प्लस 4 by 5n स्क्वायर। इजी है, देखिए 3m मतलब, यस प्रियांशी यू आर राइट, 9m स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई भी आपस में किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा,
पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए. 2 into 3 is 6. 6 into 4 is 6 into 4 24. और डिनोमिनेटर देखिए ओनली 5, तो 24 by 5. अब अल्फाबेट्स देखिए एम एन, तो यहाँ आ जाएगा एम एन. यस. अब यहाँ देखिए प्लस 4 into 4 is 16 अपॉन 5 into 5 25. और जो n है वो लिखेंगे n स्क्वायर. So the answer is 9m square minus 24 by 5 mn plus 16 by 25 n square. This is the answer. Now let's go into the fourth question. Fourth question we will do. Three m into 3m. क्या होगा? 3 into 3 9 और m into m square. 3m को ही तो स्क्वायर करना है, मतलब 3m 3 into 3 9. Is there any other query before we go into the next question? Fourth question, find the products. So fourth question is, for x plus 3 into x minus 3. अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? Third identity which we have learned. Which identity? Type out quickly. Which identity will be used? Yes, Pawan, you're right. I will use identity a plus b into a minus b is equals to a square plus b square. अब यहाँ पर a क्या है? a क्या है? Yes, you are right. a क्या है इस केस में? x या टर्म, और b क्या है? इन टर्म होगी इसमें. Quickly, 3 square थ्री लिखना क्लियर. हमसे भी इस फॉर्म में करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a square minus b square. A square minus b square a square minus
b square. खोलिए ब्रैकेट को, x into x square minus 3 into 3 3 9 times. So x square and 9 this answer. Now please, as much as we can. Fourth second है 2x plus 5. एक में a जगह क्या आएगा और b की जगह 5. a माने d हम 2x square minus 5 square. सॉल्व कीजिए, x को जगह आएगा 4x square minus 5 by 25. This is the answer. Simply a square minus b square का a की जगह लिखा 2x, b की जगह लिखा 5. 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, 5 स्क्वायर होता है 25. इसमें से ध्यान देंगे माइनस. थर्ड देखिए 8 minus x. इसमें भी सेम आइडेंटिटी लगेगी. आई एम नॉट राइटिंग अगेन, यू हैव टू राइट दिस. आइडेंटिटी लिखिए क्वेश्चन में. a plus a minus is equals a square minus b square. a है 8 और b क्या है x. कोई दिक्कत नहीं है. अगर अल्फाबेट और नंबर एक्सचेंज हो गए तो प्रॉब्लम. आप सिंपली क्या लेंगे 8 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. क्यों? क्योंकि एक था तो ये आ गया और b की जगह x था तो यहाँ कीजिए. 8 is 64 minus x in x square. So answer is 64 minus x square. Yes, I hope it's clear. Next लीजिए fourth question. What is the fourth question? फोर्थ है 7x plus 11y. Seven x plus 11y. 7x minus 11. That same identity a plus b. A minus b minus a square minus b square. इसमें एक की जगह फर्स्ट और एक की x और b के क्या लिखेंगे 11y. सेकेंड आप करिए equals to 7x square minus 11y square. 7 into 7 is yes, power answer 49x square minus 11 into 11. Yes, Ankita 121y square. This is the answer. 49x square minus 121y square. Now I want to take one of the fraction also. So let's go and keep 5 square
5x squared plus 3/4 squared plus 5x. Same entity a plus b minus b is equals to a square minus b square. a की जगह आएगा यूज यहाँ पर 5x स्क्वायर, याद रखेंगे पावर आएगी क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म में पावर है। एक जगह 5x स्क्वायर और b जगह क्या है 3/4 y स्क्वायर, 3/4 y स्क्वायर, b जगह 3/4 y स्क्वायर। इसको आइडेंटिटी कर लिखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। x स्क्वायर का स्क्वायर, याद रखिए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/4 y स्क्वायर का स्क्वायर, इसमें भी बस स्क्वायर का स्क्वायर। आइए करिए 5 into 5 is 5 square to 5 square can be 25 x raised to the power 4. Differentiation 25 5 into 5 और square है x to the power 4 minus क्योंकि हमें इसका सिंबल अरे नंबर किए फ्रैक्शन किए 3 into 3 9 and 4 into 4 16 फ्रैक्शन हो गया 9/16। अब y ऊपर की पावर देगी y स्क्वायर का स्क्वायर पावर कितनी होगी x4। So answer is 25x raised to the power 4 minus 9/16 raised to the power 4. I don't have much time. So we have completed question number 4, first portion. Up to this, every question has to be there in your CW copy. Please be safe. Thank you, class. Thank you, sir.